Assalamu alaikum class. This is your online 13th lecture of applied physics, and in today's lecture you people will learn about Kirchhoff's laws. We will study about Kirchhoff's laws, and if you people remember, in your first year or in your second year class, you have read these Kirchhoff's laws, and these laws were presented by Robert Kirchhoff, and on his name, these laws are known as Kirchhoff's laws. Okay, Kirchhoff's laws, or and which are those laws? These laws are Kirchhoff's current law, which is known as KCL, and Kirchhoff's voltage law. Actually, Kirchhoff present these two laws about current of a circuit and about voltage of a circuit. So, the law which was stated for the current of a circuit is known as Kirchhoff's current law. Also, we pronounce it as KCL, and the law which was stated for voltage for the voltage of a circuit is known as Kirchhoff's voltage law. So we will study in today's lecture. We will study these two laws, KCL and KVL. Okay, so KCL is for current of a circuit, and KVL is about for the voltage of a circuit. Okay, students. So these are two laws of Kirchhoff's. One is for current and one is for voltage for a circuit. Now let's see what is KCL. Okay, what is KCL? Kirchhoff's current law. Kirchhoff's current law states that the algebraic sum of currents entering a node or closed boundary is 0. Okay, ignore this one, or a closed boundary. Just ignore this line. What is KCL? KCL states the algebraic sum of currents, or the algebraic sum of all the currents entering a node is 0. Okay, the mathematically हम इसको क्या लिखेंगे? Summation I is running from 1 to n, I n is equal to 0 means sum of all the currents is equal to 0. ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन KCL का है समेशन I इज इक्वल टू 0. एक्चुअली किर्चॉफ्स करंट लॉ है क्या? किर्चॉफ्स करंट लॉ है कि अगर कोई किसी नोड पे, मैं आपको थोड़ी देर बाद सर्किट में दिखाऊंगी कि नोड होती क्या है, तो किसी नोड की तरफ जितने भी करंट्स आ रहे हैं और उस नोड से जितने भी करंट्स जा रहे हैं, ठीक है, द करंट्स कमिंग टूवर्ड्स द नोड एंड द करंट्स लीविंग दैट नोड, वो इक्वल होंगे. ठीक है, तो हम इसको KCL को कैसे डिफाइन करेंगे कि जो कोई भी एक नोड है या एक पॉइंट है, उसकी तरफ जितने भी करंट्स आ रहे हैं, जितने डिफरेंट ब्रांचेस है, ठीक है, तो वो उसकी तरफ आने वाले करंट बराबर होंगे उससे जाने वाले करंट, या हम कहेंगे कि उस नोड पे, उस पॉइंट पे करंट और सारे करंट्स का सम 0 है. ठीक है, क्योंकि जितना करंट उधर से एंटर हो रहा है उतना ही करंट वहाँ पे लीव करेगा. दिस इज एक्चुअली करंट दिस इज एक्चुअली KCL. सो आप KCL को कैसे डिफाइन करेंगे? दिस स्टेट्स दैट द algebraic sum of all the currents entering a node must be equal to sum of all the currents leaving that node. ठीक है, या लिखें कि sum of all the currents at a node is equal to 0. So summation I is equal to 0. Okay, where n is the number of branches. अभी मैं आपको दिखाती हूँ ब्रांचेस क्या होती हैं और हमारे पास नोड क्या होती है. ठीक है, एंड I is the nth current entering or leaving the node. ओके, ये एक जो हमारे पास मिड पॉइंट है,
इसको हम कहते हैं नोड। ठीक है, इस नोड के साथ क्या है, ये जो 5 लाइंस है हमारे पास, एक्चुअली दीज आर ब्रांचेस। ठीक है, सर्किट में ये ब्रांचेस कैसी होती हैं मैं आपको वो भी बताऊंगी, नोड कैसी होती है वो भी बताऊंगी, लेकिन हम इस फिगर के हिसाब से क्या कहते हैं, दिस जहाँ पे ये सारी ब्रांचेस मिल रही हैं, कनेक्ट हो रही हैं, दिस इज नोड। और ये जो चीज़ें मिल रही हैं या कनेक्ट हो रही हैं, एक्चुअली दीज आर ब्रांचेस। ठीक है, तो क्या है, जहाँ पे एक से ज़्यादा ब्रांचेस मिल रही हैं, दैट इज़ नोड। अब क्या है, अगर आप देखें I1 हमारे पास क्या है, टुवर्ड्स द नोड फ्लो कर रहा है, I2 लीव कर रहे हैं नोड को, I3 टुवर्ड्स द नोड है, I4 भी टुवर्ड्स द नोड है, और I5 लीव कर रहे हैं। एक्चुअली I2 और I5 दो करंट्स हैं जो इस नोड को लीव कर रहे हैं, जबकि I1, I3 और I4 ये तीन वो करंट्स हैं जो इस नोड की तरफ फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, these three currents are flowing towards the node and these two currents are leaving this node. So what was KCL, Kirchhoff's current law? It is the algebraic sum of all the currents moving towards the node, वो कौन से हैं, I1, I3, I4, must be equal to sum of all the currents leaving the node. leaving the node कौन से है, I2 और I5. So हम मैथमेटिकल इसको क्या कहेंगे, हम मैथमेटिकल इसको कहेंगे I1 प्लस I1 प्लस I3 प्लस I4 सम ऑफ, अगर आप गौर से देखिए I1, I3 और I4 कौन से करंट्स हैं, I1, I3 और I4 वो करंट्स हैं जो नोड की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, जबकि I2 और I5 इस नोड से अवे जा रहे हैं। सो सम ऑफ ऑल द करंट्स मूविंग टुवर्ड्स द नोड मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट्स लीविंग दैट नोड। ठीक है, एक ही नोड है, उस नोड पे ये तीन करंट्स वो हैं जो उसकी तरफ जा रहे हैं, और ये दो करंट्स वो हैं जो उस नोड को लीव कर रहे हैं। ठीक है, या उस नोड से अवे जा रहे हैं। सो अवे जाने वाले करंट्स का सम और जो टुवर्ड्स जा रहे हैं उनका करंट्स का सम इक्वल होना चाहिए। आप केसीएल को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग अ नोड इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द करंट्स लीविंग द नोड। ठीक है, उस स्टेटमेंट एक हम इसको ये भी लिख सकते हैं, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है। अगर आप I2 और I5 को दूसरी साइड पे लेके जाना चाहेंगे तो I2 और I5 माइनस हो जाएंगे। ठीक है, इस तरफ थे प्लस थे, दूसरी तरफ आएंगे तो सो I1 माइनस I2 प्लस I3 प्लस I4 एंड माइनस I5 इज इक्वल टू 0. So this is another expression for this figure or for the for KCL. So you can express KCL by this equation, and also you can use this equation to express KCL. So this is actually the statement of KCL. You can say the sum of the currents entering a node is equal to the sum of the currents leaving the node. Or you can also say, अब देखें इसकी तरफ जाने वाले ये तीन करंट्स है, इससे अवे जा रहे हैं ये दो करंट्स। एक्चुअली नोड पे तो करंट कोई भी नहीं है, ज़ीरो हो गया, कुछ इसकी तरफ आ गया, कुछ यहाँ से चला गया, इक्वल है तो वो कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को। सो हम कहते हैं द सम ऑफ ऑल द करंट्स एट द नोड मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये देखें हमने सारे करंट्स का सम 0 कर दिया है नोड पे। ठीक है, सो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ KCL. नाउ लेट्स सी व्हाट इज किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ. ओके, अगर हमें KCL ही देखना है, ये देखें ये हमारे पास एक सर्किट है। ठीक है, अब इस सर्किट में क्या है, IT हमारे पास इस तरफ फ्लो कर रहा है। ओके, नोड क्या है पहले मैं ये बता दूं आपको। अगर आपको याद हो, हम रेजिस्टर्स पे हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब फाइंड की थी तो मैंने आपसे कहा था कि हम देखते कैसे हैं कि पैरेलल कैसे होता है। तो हम कहते हैं कि अपर नोड होती है, एक लोअर नोड होती है। अगर सारे कंपोनेंट्स का लोअर एक जगह पे कनेक्टेड है और उनका अपर एक जगह कनेक्टेड है तो वो पैरेलल होती हैं। ठीक है, सेम अगर ये पूरी लाइन आप देखें तो ये पूरी लाइन एक नोड है। ठीक है, ये क्या है, पूरे एक ही पॉइंट पे एक ही लेवल पे I1 भी कनेक्टेड है, I2 भी कनेक्टेड है और I3 भी कनेक्टेड है। सो दिस इज वन नोड और ये एक लोअर नोड है। ठीक है, तो अब क्या है, I1 टुवर्ड्स द नोड है, I2 अवे फ्रॉम द नोड है, I3 टुवर्ड्स द नोड है और IT भी अवे फ्रॉम द नोड है। सो
टुवर्ड्स द नोड क्या है, एरो देखें I1 और I3, अवे कौन सा है I2 और IT। तो KCL अगर हम अप्लाई करते हैं तो सम ऑफ ऑल द करंट्स मूविंग टुवर्ड्स द नोड कौन से हैं, I1 प्लस I3 मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट्स लिविंग द नोड विच इज IT प्लस I2। सो मैथमेटिकली हम इसको लिखेंगे IT प्लस I2 इज इक्वल टू I1 प्लस I3, या आप इसको कह दें IT मतलब कि टोटल करंट इज इक्वल टू I1 माइनस, हम इसको सिर्फ अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो आप इसको क्या लिख सकते थे, IT प्लस I2 माइनस I1 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। आप इसको किसी भी तरह से लिख सकते हैं मैथमेटिकली, ठीक है। सो दिस इज KCL। Okay, now let's see what is Kirchhoff's voltage law, KVL. KVL states that the algebraic sum of all voltages around a closed path or a loop is 0। ठीक है, KVL हमारे पास क्या है, algebraic sum of all voltages। ठीक है, किसी भी सर्किट में जितने भी वोल्टेज के कंपोनेंट्स हैं उन सब का सम अराउंड अ क्लोज्ड पाथ। कंडीशन है हमारे पास कि वो सर्किट क्लोज्ड लूप हो, क्लोज्ड पाथ हो, ठीक है। ओपन लूप ओपन सर्किट के लिए हम नहीं कर रहे, हम उसको क्लोज्ड के लिए डिफाइन कर रहे हैं। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस अराउंड अ क्लोज्ड पाथ और अ लूप इज इक्वल टू 0 इज 0। मैथमेटिकली हम क्या लिखेंगे, समेशन ऑल वोल्टेजेस समेशन V is equal to 0, sigma V is equal to 0, so all the voltages Vm, m is running from 1 to m, so all the voltages is equal to 0, ठीक है। ओके, अगर हम इस सर्किट को देखें, फिगर 2.19 को देखें, ठीक है। अब फिगर 2.19 देखें, ये एक सर्किट है, इसमें क्या है V1 एक बैटरी लगी हुई है, वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, पावर सप्लाई लगा हुआ है, ठीक है। हमने एक V1 वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, इसको हम वोल्टेज सोर्स कहते हैं। उसके बाद क्या है, पहला रेजिस्टर लगा हुआ है जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या जिसके अक्रॉस वोल्टेज है V2, पोलैरिटी क्या है प्लस एंड दिस इज माइनस। उसके बाद एक और रेजिस्टर लगा है जिसके अक्रॉस वोल्टेज है V3 प्लस और ये माइनस, ठीक है। उसके बाद एक और वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है जिसकी पोलैरिटी है माइनस प्लस और V4 उसके अक्रॉस वोल्टेज है। उसके बाद एक और कंपोनेंट, कोई भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट लगा हुआ है जिसके अक्रॉस वोल्टेज है V5 और पोलैरिटी है प्लस माइनस, ठीक है। सो एक्चुअली इसके ये जो एक क्लोज्ड पाथ है इसको हम लूप बोलते हैं, ठीक है। ब्रांच मैंने आपको बताया है, जो कंपोनेंट्स कनेक्ट होते हैं सर्किट में किसी नोड से मिल रहे होते हैं वो ब्रांचेस होती हैं, नोड होती है जहाँ पे एक से ज़्यादा ब्रांच मिल रही हो, ठीक है। और लूप हमारे पास क्या है, दिस इज लूप, दिस क्लोज पाथ, इस क्लोज पाथ को हम लूप कहते हैं, ठीक है। दिस इज क्लोज सर्किट। ओके, अब हमने क्या कहा है, हमने कहा है कि KVL एक्चुअली है क्या, KVL है सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन अ क्लोज लूप और इन अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सारे वोल्टेज उठाने हैं, उनका सम करना है और इक्वल टू 0 कर देना है अकॉर्डिंग टू KVL। अब हमने क्या करना है, ये एरो देखें, दिस इज क्लॉकवाइज। आप सबसे पहले क्या, कभी भी कोई सर्किट दिया है उसको सॉल्व करना है, आप उसमें सबसे पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करा दें। एक्चुअली आप इसमें ये बता रहे हैं कि इस सर्किट में क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। दिस एरो डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। हम इसको डिफ़ॉल्ट ऐसे ले लेते हैं, अगर आप चाहते हैं एंटी क्लॉकवाइज लेने आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, लेकिन आपको एक सर्किट में एक ही डायरेक्शन रखनी है, आपने इसमें क्लॉकवाइज ले लें, मैक्सिमम कोशिश करें कि एक ही डायरेक्शन में लें, ठीक है। ओके, अब उसके बाद देखें ये क्या है, V1 एक्चुअली सम क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5, ठीक है। सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन अ क्लोज लूप और इन अ क्लोज सर्किट इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करें, हम V1 V2 V3 V4 और V5 सबको सम करके 0 कर दें, नहीं, हमें क्या, हमें पोलैरिटी भी देखनी है प्लस, क्योंकि एक्चुअली दिस इज अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक मतलब कि प्लस माइनस आपको गौर से लिखने हैं कि प्लस हो रहा है वोल्टेज या माइनस हो रहा है, इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है। अब क्या है इसमें, ओके अब देखें डायरेक्शन हमने इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करा दिया है,
ये एरो इस तरह से जा रही है। अगर हम पहले कंपोनेंट से देखें, ये नेगेटिव टर्मिनल में एंटर हो रहा है, ठीक है। जब करंट नेगेटिव टर्मिनल में एंटर होता है तो वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होती है। करंट पॉजिटिव टर्मिनल में हमारे पास एंटर होता है तो वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है। सो देखें, करंट की डायरेक्शन हमने ऐसे रखी है। पहला कंपोनेंट देखें तो इसमें ऐसे एंटर होगा, मींस इसके एंटरिंग पाथ पे नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। सो दिस इज -V1, ओके, -V1। उसके बाद देखें एरो यू जाएगी, क्योंकि हम एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करा रहे हैं, यू जाएगी तो क्या है, रेजिस्टर के प्लस टर्मिनल से करंट फ्लो कर रहा है। सो दिस इज +V2। उसके बाद रेजिस्टर के थर्ड जो दूसरा रेजिस्टर है उसके प्लस टर्मिनल से एंटर हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से। सो दिस इज +V3। उसके बाद क्या है, V4 में एंटर हो रहा है, लेकिन अगेन वो क्या है, नेगेटिव टर्मिनल में एंटर हो रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव टर्मिनल में एंटर हो रहा है तो -V4। अगेन जब इस कंपोनेंट के पास आता है तो पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर हो रहा है करंट, सो दिस इज +V5, ठीक है। सो सम ऑफ ऑल द algebraic sum of all the voltages is equal to 0. So this is -V1 plus V2 plus V3 minus V4 plus V5 is equal to 0. हमने सारे वोल्टेजेस को सम किया और इक्वल टू 0 कर दिया है। V1 और V4 माइनस क्यों है और बाकी पॉजिटिव क्यों है, फिर से सुन लें कि जिस टर्मिनल से करंट एंटर हो रहा होता है, अगर वो नेगेटिव है तो वो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। अगर वो चीज़ पॉजिटिव है, उसका एंटरिंग टर्मिनल, तो हमारी वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। सो जब करंट V1 में एंटर होता है तो नेगेटिव टर्मिनल से एंटर होता है, इसलिए ये माइनस है। जब यहाँ आता है और इधर V4 में एंटर होता है तो माइनस टर्मिनल पहले आता है, सो दिस इज -V4। बाकी V2, V3 और V5 के केस में जब करंट एंटर होता है तो उसको एंटरिंग पाथ पे क्या है, एंटरिंग टर्मिनल पे पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, पॉजिटिव टर्मिनल मिलता है। दैट्स वाई दिस V2, V3 एंड V5 इज पॉजिटिव एंड V1 एंड V4 इज नेगेटिव, ओके। यहाँ हम क्या कर दें कि पॉजिटिव V1 और V4 को दूसरी साइड पे ले जाएं, V1 प्लस V4 इज इक्वल टू V2 प्लस V3 प्लस V5, ठीक है। तो ये क्या है, सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स, ठीक है, ये इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज राइजेस। एक्चुअली आप देखें, ये जो दो हमने लगाए हैं V1 और V4, ये वोल्टेज सोर्सेज हैं जो सर्किट को वोल्टेज दे रहे हैं। ये क्या है, रेजिस्टर है, ये भी कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। ये एक्चुअली पावर ले रहे हैं, इन पे पावर डिसिपेट हो रही है, सो इन पे वोल्टेज का ड्रॉप होगा, ठीक है। सो वो कंपोनेंट्स जिन पे वोल्टेज का ड्रॉप होगा इक्वल टू वो कंपोनेंट्स जो वोल्टेज दे रहे हैं। सो सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज राइजेस। हम इस इक्वेशन को इंटरप्रेट कर रहे हैं, ठीक है। ये भी KVL है, ये भी KVL है, एंड दिस इज ऑल्सो KVL मीन्स किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। सबसे पहले क्या, ओके, दोबारा से स्टेटमेंट बताना है। सम ऑफ ऑल द KVL states the algebraic sum of all the voltages around a closed loop or a closed path is equal to 0. तो सबसे पहले देखिए, हमारा सर्किट क्लोज्ड है, उसमें हम सबसे पहले फिर क्या करते हैं, एक करंट को फ्लो करा देते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन से वोल्टेज हैं, जो प्लस हैं वो प्लस कर देंगे, जो माइनस है वो माइनस हो जाएंगे। सो सबका सम इक्वल टू 0 कर देंगे हम। सो दिस इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ओके स्टूडेंट्स, हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के लिए KVL की एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ठीक है, कि सर्किट्स में हम KVL अप्लाई कैसे करेंगे और उसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसी तरह हम KCL की भी करेंगे, लेकिन अभी हम किसकी KVL को अप्लाई कर रहे हैं। ओके, एग्जांपल 2.5 है, फॉर द सर्किट इन फिगर 2.21a, ठीक है। इस फिगर की बात करता है और कहता है फाइंड वोल्टेजेस V1 एंड V2। एक्चुअली क्वेश्चन हमारे पास ये सर्किट है और ये एक लाइन है, ठीक है। ये पूछा गया है कि वोल्टेज V1 और V2 फाइंड करना है, जबकि सर्किट हमारे पास ये है, ये सोल्यूशन है, ठीक है। जैसे मैंने अभी कहा था कि आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, सर्किट सॉल्व करें, ये KVL अप्लाई करना है, KCL अप्लाई करना है। अगर आपने KVL अप्लाई करना है, आपने सिंपल सर्किट में क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक करंट फ्लो करवा देना है I, ठीक है। हमने क्या किया, ये I करंट फ्लो करवा दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसमें क्या है, 20 वोल्ट्स की एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, उसके बाद 2 ओम का रजिस्टर है और उसके बाद 3 ओम का रजिस्टर है। ओके, इसमें देखें क्लोज लूप है, ओके है, ठीक है। 2 रजिस्टर्स लगे हुए हैं, 2 ओम और 3 ओम, 20 वोल्ट की बैटरी कहते हैं, वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। लेकिन देखें ये क्या है, प्लस माइनस पोलैरिटी है इसमें, और इसमें क्या है, माइनस प्लस पोलैरिटी है। आपको जो पोलैरिटी गिवन है आपको वही पोलैरिटी उठानी है,
ठीक है। अगर सपोज कहीं रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोलैरिटी नहीं गिवन होती तो हम क्या करते हैं, जिस टर्मिनल से करंट एंटर होता है उसको पॉजिटिव डिफ़ॉल्ट एज्यूम करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले आपने करंट लिया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आई करंट फ्लो कर रहा है, और क्या किया है, बाकी हम उस सर्किट को कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है। अब सबसे पहले चूंकि हमें वोल्टेज V1 और V2 फाइंड करना है, हम क्या करते हैं, हमें पता है कि हम इसमें आप क्या करें, आप अगर आप देखें वोल्टेज फाइंड करना है आपको, सबसे बेसिक फॉर्मूला पता है V=IR। अगर आप कहते हैं V1 क्या हो जाएगा 2 × I। चूँकि ये पूरा सर्किट देखें सीरीज़ है, ये पैरेलल सीरीज़ है, ठीक है। सीरीज़ सर्किट है तो उसमें जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है वही इसमें करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो करंट हमारे पास 2 ओम के अक्रॉस फ्लो कर रहा है वही 3 ओम के अक्रॉस फ्लो करेगा, बिकॉज दिस इज़ अ सीरीज सर्किट से। और आपको पता है सीरीज़ में हमारे पास करंट सेम होता है और वोल्टेज डिफरेंट होता है। So V is equal to 2I, V1 is equal to 2I and VT is equal to minus 3I। V2 is equal to minus 3I क्यों, क्योंकि करंट नेगेटिव टर्मिनल से एंटर हो रहा है। So V1 is equal to 2I and V2 is equal to minus 3I। ओके, अभी भी देखें हम, अगर हमारे पास करंट की वैल्यू नहीं है तो हम इन वोल्टेजेस को फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्लोज्ड पाथ है, हम इस पर KVL अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो KVL जब हम अप्लाई करेंगे, आपको पता है सम अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इज इक्वल टू 0 होता है। अब इसमें वोल्टेजेस के हम सम लिखते हैं और उनको 0 कर देते हैं। सो करंट हमारे देखें पहले वोल्टेज सोर्स के पास जाता है, उसके नेगेटिव से एंटर होता है, तो हम लिखेंगे -20, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, V1 के वाले रेजिस्टर से गुजरेगा और उसके पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर होगा, क्योंकि ये डायरेक्शन है करंट की, यूँ जा रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ जा रहा है V1 के क्रॉस तो पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर हो रहा है, तो दिस इज प्लस V1, और जब यहाँ आएगा तो नेगेटिव टर्मिनल है उससे एंटर हो रहा है, सो दिस इज -V2। सो -20 + V1 - V2 इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन विच वी ऑब्टेन आफ्टर अप्लाइंग KVL, ठीक है। सर्किट में आप KVL अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बनी है। अब देखें एक इक्वेशन है और 2 वेरिएबल्स हैं V1 और V2, हम जिसको हम फाइंड करना चाहते हैं, तो 2 वेरिएबल्स हों और एक इक्वेशन हो तो हम उसको फाइंड नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, जो V1 और V2 की वैल्यू हम ओम्स लॉ के थ्रू फाइंड कर चुके हैं, हम उसको यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। सो V1 इज इक्वल टू 2I एंड V2 इज इक्वल टू -3I। अगेन देख लें V1 की वैल्यू पॉजिटिव क्यों है और V2 की वैल्यू नेगेटिव क्यों है, क्योंकि V1 में क्या है, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर हो रहा है और V2 में करंट नेगेटिव टर्मिनल से एंटर हो रहा है। सो दिस इज -3I एंड V1 इज इक्वल टू +2I। इन दोनों वैल्यूज को उठा के हम इक्वेशन 2.5.2 में पुट कर देते हैं। सो दिस इज -20 + 2I -V2 था, तो माइनस प्लस 3I इज इक्वल टू 0। सो जब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास करंट की वैल्यू आती है 4 एम्पियर। एक्चुअली हमें तो V1 और V2 फाइंड करना था। अब हम क्या करेंगे, इस करंट की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर देंगे और यहाँ पुट कर देंगे। सो हमारे पास V1 8 वोल्ट्स और V2 इज इक्वल टू -12 वोल्ट्स आ जाएगा। सो ये क्या है, ये एक KVL की एग्जांपल है कि कोई भी सर्किट हो हमारे पास और हमें इसमें से वोल्टेज फाइंड करना हो तो हम उस पर KVL कैसे अप्लाई करेंगे और उन वोल्टेजेस की वैल्यूज़ को कैसे फाइंड कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको अब क्या करना है, आपको इस लेक्चर के साथ में प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.5 सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद आप एग्जाम्पल 2.6 अगर करना चाहें कर लें, वो मैं खुद करवाऊंगी क्योंकि इसमें ये एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है जिसका आपको नहीं पता, तो मैं इसके बारे में बताऊंगी आपको। सो दिस वाज ऑल अबाउट KCL एंड KVL स्टूडेंट्स। थैंक यू।